Good evening, Ankit. You have not sent your photo. सर किस चीज का फोटो सर? Check the group. You have not seen that the poster is not having your photo. The poster which I have made is having photo of both speakers, not yours. It's 16 hours. सर पीडीएफ से रेडी कर चुके हैं, वो प्रेजेंटेशन टाइप से नहीं हो पाया था, तो सर वो कॉपी का No, पेज। you are not getting my point. I am Yes, telling sir. that I asked in the group that all speakers please send your photos. सर आपका आवाज नहीं आया सर, आप क्या बोल Hello, everyone. Yes, good evening. I think you are still at Neura branch. Yes, sir. Your So- window is telling me that you are still at Neura branch, because that type of windows are there only. Yes, sir. True. So still birthday bash is on, or it's over? No, it's not that birthday bash. Birthday just came in between. Actually, we were here for some other work. Abhay sir has some work. So, Okay, but today means today only we had to go. But I said that I'll complete this and then we'll go. Okay. It was a great Session. one. We saw photos on Facebook with lovely children. You have celebrated your birthday. Yes, Great. sir. Okay, so I think we have all three speakers at place. So I 10, think 10, we 20. have 3 speakers and 2 listeners only. No, so when you will speak, 4 will listen. Right. So I think Ankit wants to start first. So Ankit, your time is 10 minutes. You can start now. सर स्क्रीन रिप्रेजेंट करना है सर। Okay, 1 minute. Yes, now you can do that. So my topic is myself Ankit. So thank you sir to give the opportunity to explain the topic of career. So career, always try to choose the right career, because if we don't choose that career where we happy, then we will find a lots of difficulty, because the career age is minimally 30 to 40 years. So always try to choose the right career. This is the first step. I think here everyone is in any career, so I'm not going to explain how to choose the right career. So I am moved to how to become better in our career. So always spend the time with senior who better than who better in any skill. It means I want to say that every time spend the time with senior who gave some good advice, good knowledge, or who is better in any skill without showing the age. If anyone is younger than me, then I am audible. Is there any problem? No problem. You can continue. Who is better than any skill? So always try to understand or try to taking a knowledge from anyone, younger, older, or a same age. You are the average of the 5 people you spend the most with time with. So always choose wisely. जिसके साथ हम लोग we spend the time most of the time,
So we are the average of the 5 people. That's why I always say that choose the wise friend, choose a good friend or a good teacher, because we are after some time we are show the same qualities who our friend always show. Don't be vary with the people better than you. Some of the time in our career, or if we are in any company and we saw that see, anyone is better than me, so we are jealous of that person and we thinking he is better than me, so he's going the award and he's the first. Never try to do that thing. Every time try to learn from them, because if we learn from that particular person in future we got an opportunity. If he is not available or in any other career in anywhere, we got an opportunity. So always try to learn from everyone. Don't always follow the herd, try to new things. It means always not do same thing which everyone said in your career. Always try to do something new, because if you do something new, then you got a opportunity to do to better. You got a good growth. Always try to learn new things. Become a specialist in your field. Always try to become a specialist in field which is help in your career. Because if you are a specialist in career, so anyone wants in that career to everyone choose or everyone recommend you. If you are comes on any field up to 1 and 2%, it means you are the best one. You have a lots of money. You talk to any career. It may require to change the career, because because there's the age of our career is 30 to 40 years. Accept the change. Some of the time in our eyes, change is coming in our career. So everyone uh, afraid that. For example, in Corona situation, our career is changes. A lot of people have fear from that, but some of them are not fear from that situation. Is ready to change and accept the change. Anyone accept the change, he's become a better one in the Corona, and he's more profitable by wealth, by everything, by career, by wealth, by health. To accept the change. If you feel you are the smart in the room, then you change the room. It means if you feel like I am better in the company, I am better in this team, to always change the team, because you are living in the foolish one people. If you want to grow in your career, then go with where you are smaller, or you are another people are more better than you. And this is a very sensible topic, because some of the time we are evaluating ourselves or myself very unconsciously, because whenever we related to another one, we should only focus all the negative point of another one, but whenever we focus on ourself or myself, then we only focus on positive point. So whenever you are evaluating anyone or myself, during that time choose wisely or giving the rating wisely. So thank you everyone to listen me. Thank you, Ankit. Thank you. So you have done a very good start. I'm happy. I'm happy. So now either Garima ma'am can go for second, or Rupesh sir. I can go. Rupesh sir, you can go second. I am last, sir. It's okay. He wants to be last. So as usual, we have seen Rupesh sir in Deja Vu school also. He always wants to go last as it is comfortable. So, Okay, sir. Okay. ठीक है. तो can I share my screen? You can share. Okay. Is it visible? Yes. 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 Fantastic. Fantastic. Okay. So this topic why I have selected, actually from a long time, this word artificial intelligence, Can AI. you start, ma'am? Can you start slideshow? Then I will have the full screen. Yeah, it's in the slideshow only.
means the full screen. Right now we can see the sidebar also. Means there's a button here. Slideshow. Well, but See, on top, home, insert, design, animation, slideshow. On top, home, insert, design, animation, and then all slideshow. those things you are able to see, but I have put it in a slideshow only. Wait, I am doing with the F5. Now, Uh, same thing is coming. okay, same thing. Okay, no problem, ma'am. We can see that. Okay. Let me see from where I can. See, on top you have buttons, ma'am. Home, insert. Yes, sir. design, With the F5 animation. also we can do with that I know, but it's showing slideshow in my system. From beginning, yes. Done? Okay. Has it? No, it has not changed. It is as it is. Okay, anyway, ma'am. No, you can start. No problem. So from my okay, maybe after some time it will be visible in. I'm not sure. So artificial. Maybe. Okay, I just remembered, ma'am. You have to go for new sharing. If you go for new sharing, then you will get that full screen. Go for new share. No, new share. Share screen. Share screen. Again, share screen. You will find the new screen with full of. From beginning downward. only. Chay. From Zoom. Share screen. Zoom share screen. Zoom share screen you will go touch. Then you will get again options. And in that one option will be full screen. The screen sharing of Zoom you have to now attempt. जब आप Zoom का न्यू शेयर करेंगे ना तो आपको वापस वो दिखेगा विंडो. Zoom का तो complete is not visible. Zoom में आपका है ऑप्शन न्यू शेयर का ऑप्शन है Zoom में न्यू शेयर. Wait, sir. I'm sharing it again. Now share and now check for the full screen. Share sound, optimize the video clip. 2 options are coming. नहीं शेयर स्क्रीन में आ रहा है आपको विंडोज अलग-अलग विंडोज आ रहे हैं शेयर स्क्रीन में. इन दैट देखिए जिसमें आपका पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा हो प्रेजेंटेशन उसको चूज कीजिए. नहीं तो आपका जूम आ गया पूरा. ठीक है मैम छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं. लेट्स अभी ये दिख रहा है प्रेजेंटेशन मेरा. हाँ नाउ परफेक्ट आ गया. Okay. So artificial intelligence I had selected because this is a very buzzing word nowadays. जहाँ भी जाते हैं हम लोग artificial intelligence है या marketing में भी we are saying that a lot of technical things are coming up. So I have selected this क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी. Then I thought that for this presentation I'll figure out some facts and figures and then I'll share with everyone in this meeting. So let me start with why artificial intelligence is important nowadays. So here I have gathered 5 points why it is important. The first point is artificial intelligence will create a new job. As we are seeing that jobs are at the stake. कि अभी क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा है क्या नए ऑप्शंस है. तो this artificial intelligence has created a new sector of jobs जिसमें कि बहुत सारे लोग आजकल जितने भी मैं देख रही हूँ इन्फोसिस ये सब भी है विप्रो छोटे छोटे एप्स बना के चीजों को ऑटोमेट कर दे रहे हैं. तो ये चीजें हमें अपडेटेड रहने की जरूरत है whether we are doing or not, but we should be knowing that here this is in this particular sector artificial intelligence is being used and how if someone is interested then they can go ahead with the gathering the knowledge. A lot of online this trainings are also there in the YouTube, paid, unpaid, everything is there.
So at least we should be knowing that what we have to learn. So this is the future thing that is coming up, and it will create a lot of new jobs in different sectors. It is not sector specific, even in agriculture also. I'll show you in the further slides. Second part is artificial intelligence will improve healthcare. How it will improve? It helps you in solving the repetitive work they will do, means the machine, or maybe you can say the robots will be doing the repetitive works in which manual errors can happen. So if we do the programming in a robot and fixed for a patient, then it on regular interval of time, if something has to be measured, जैसे कि कोई पेशेंट है, पेशेंट के साइड में बहुत सारी चीजें आजकल मशीन्स में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सेंसिटिविटी के साथ आ रही हैं. तो those things if people were doing initially, nowadays it will be done by machines. Second is artificial intelligence is being used in collecting a lot of data, that people are doing different things in different scenario, but then they keep on forgetting. कोई चीज बहुत अच्छा हमने अचीव कर लिया, लेकिन उसको बाद में हम लोग भूल जाते हैं. तो उस जगह पे डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड डेटा कलेक्शन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मशीन लैंग्वेज. वो मैं लास्ट में बताऊंगी मशीन लैंग्वेज क्या होता है. दैट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज डिजिटल कंसल्टेशन. बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और मुझे इसके बारे में डेटा चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं. तो वो सब डेटा कलेक्शन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जा रहा है अभी मेडिकल लाइन में. देन मैनेजमेंट, वर्चुअल नर्सेस में क्या होता है, देयर आर सम इलनेस और सम डिजीज जिसमें कि लोग या नर्सेस बहुत क्लोज पेशेंट के जाना नहीं चाहते हैं, और वो पेशेंट को बहुत अकेलापन लगता है, या मेंटल हेल्थ के लिए वो सही नहीं है अकेला होना. तो इन दोज प्लेसेस simulated robots go and they talk, they interact like we have seen in our mobile phones. ओके गूगल कर लिया, या गूगल नाउ पे वी जस्ट वॉइस से कुछ भी आप बता दिए तो उधर से आपको रिप्लाई में भी एक वॉइस आता है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड विच इज वेरी वेरी helpful in medical sector. Drug creation and methods of other uses are there for artificial intelligence in medical sector. Then comes the artificial intelligence will revolutionize the agriculture. Like I have said, ये हर जगह पे है, कहीं पे भी, जैसे कि ड्रोन से मॉनिटर कर रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये अभी हो रहा है, एग्जिस्टिंग में ये सब हो रहा है. डेटा कलेक्शन, कभी ड्रॉट आया तो उसका मतलब एक पुराने टाइम से लेके अभी तक क्या सीक्वेंस में कैसे क्या हुआ, वो सब सारा चीज. क्रॉप्स में भी जैसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, तो वो सब का डेटा रखना है, वो सब भी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सिमुलेट करके बेटर फ्यूचर के लिए उसको यूज किया जा रहा है, ताकि उसको हम लोग स्टोर कर सकें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एलिमिनेट द नीड फॉर यू टू परफॉर्म द टीडियस वर्क. जैसे कि कुछ काम होते हैं रिपीटेड, जो करते करते बहुत बोर हो रहा है, कोई सेम चीज टेम्परेचर नोट करके लिखना है. जैसे हम लोग का यहाँ पे एग फार्म ही है, तो एग फार्म में जैसे से वेदर चेंज होता है, तो उसके अंदर का सारी मुर्गियों के लिए जो 10,000 बर्ड्स है, उसके लिए उसका टेम्परेचर फिक्स है कि इतने से इतने के बीच में ही होना चाहिए. तो जब जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो 1 लाख से ज्यादा मतलब एग फार्मिंग करते हैं, वो लोग ये सब ऑटोमेट करके रखते हैं. उनको खुद ही जो एप्स रहेगा उस पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि अब वेदर ऐसा हो रहा है, या वेदर फोरकास्ट से वो कनेक्ट करते हैं आपको कि अब अगले 2 दिन में ऐसा होने वाला है, तो आपको ये सब प्रिकॉशनरी स्टेप्स करके रखना है. तो ये सारी चीजें आपको हर फील्ड में, हर सेक्टर में, चाहे वो बहुत ही रिलेटेड टू ग्राउंड हो या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, एवरीवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर. जैसे कि ऑटो सेफ्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड टू इंक्रीज ऑटो सेफ्टी एंड डिक्रीज ट्रैफिक कॉम्प्लिकेशंस.
ये कैसे करते हैं, जो जीपीएस होता है, जीपीएस से कनेक्ट करके, जैसे हम लोग अगर गूगल मैप पे आप लोग जाएंगे तो वो दिखता है कि कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है तो वो रेड कलर से रोड आपको दिखेगा, जहाँ पे कम ट्रैफिक है वो ग्रीन से दिखता है। ये ऑल दीज थिंग्स आर सिमुलेशन ओनली, दीज आर ओनली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट पीपल आर यूजिंग और वी आर सीइंग। मतलब अब तो ये एकदम डोर स्टेप तक आ चुका है। पहले ऐसा था कि साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं रोबोट्स ये सब ऐसा, बट इट्स द फ्यूचर हैज कम जब हम लोग सबको अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ वी कैन बी हेल्पफुल और वी कैन सेव आवर जॉब्स लाइक दैट। जैसे कि ये है एलॉन मस्क का नाम कितने लोग सुने हैं? एलॉन मस्क बहुत फेमस अभी, ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है अभी फिलहाल, जनवरी 2022 के। एलॉन मस्क, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके 3 और 4 कंपनीज आर देयर जो कि खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ये सब पे वर्क करता है। एंड ही हैज ट्वीटेड लॉन्ग बैक, worth reading, super intelligence by we need to be super careful with artificial intelligence, potentially more dangerous than nukes। अभी थोड़े दिन पहले भी इनका ट्वीट था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डेंजरस देन नॉर्थ कोरिया। जो हम लोग देख ही रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा मतलब हमारे बीच में आ जाएगा या हमारे लाइफ को मतलब ये ओवर पावर कर सकता है, बिकॉज रोबोट्स कैन रूल द वर्ल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी आई रोबोट? और हिंदी में एक रोबोट है रजनीकांत वाला, जिसमें कि वो क्या करता है, रजनीकांत वाला। तो उसमें क्या करता है, वो स्टोरी बहुत सारी बुक्स देता है वो चिट्टी को पढ़ने के लिए, तो पढ़ पढ़ के उसका अंदर का जो माइंड होता है वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में चीजों को फील करने लगता है। सिमिलरली देयर इज वन मूवी आई रोबोट, आई रोबोट यू मस्ट सी। उसमें भी ये वो बताया है कि रोबोट्स पे बहुत नहीं होना चाहिए, हमको अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए। कई सारे लोग अब जाके समझने लगे हैं कि नेचर का कितना इम्पोर्टेंस है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका कितना इम्पोर्टेंस है। हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, बट रोबोट्स डोंट नीड ऑक्सीजन और एनीथिंग, दे विल डू अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंग्स। तो उसमें रोबोट्स आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं। फेसबुक पे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि कुछ सर्वर्स आपस में टॉक कर रहे थे, कुछ कुछ सिग्नल्स भेज रहे थे, तो सडनली पूरे वर्ल्ड में उस दिन उन लोग को फेसबुक को कुछ रोक के और क्रॉस चेक करना पड़ा था। वो बाद में पता चला कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस वे आर नॉट वेरी हार्मफुल, बट बिकॉज व्हेन वी डोंट नो द थिंग्स देन इट इज वेरी हार्मफुल। We should know and we should know how to control these things. ये जो रोबोट्स होते हैं they can throw all of us out of the world। वो लोग उसमें जब वो लोग कम्युनिकेट करेंगे और अपनी कम्युनिटी के हिसाब से आगे बढ़ने लगेंगे, then it will be very difficult for us। तो उसी सीक्वेंस में एक यूएसए प्लान कर रहा था कि हम लोग वॉर रोबोट्स बनाते हैं, और गूगल को उसके लिए वो लोग अप्रोच किया, बट गूगल डिनाइड दिस थिंग बिकॉज गूगल मतलब वो ह्यूमन काइंड के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती अगर वॉर रोबोट्स बन जाते तो। इस वजह से उस मोटिव के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट को गूगल ने डिनाई किया था। These movies we have seen कि उनके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। इंटेलिजेंस मीन्स द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, कि किस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है। इन वन ऑफ द एक जीरो शॉट करके इसमें बहुत ही फेमस टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन विच व्हाट दे हैव डन, जो गूगल ट्रांसलेट है अपना, इन गूगल ट्रांसलेट दे हैड इनिशियली दे हैड डन इंग्लिश टू
कोरिया ट्रांसलेट किया था उन्होंने, एंड देन कोरिया टू इंग्लिश. Similarly, they have translated English to Japanese and then Japanese to English, but in between they have found out that that machine automatically learned how to translate from Japanese to Korean. वो अपने आप ही ऐसा कर सकता है. तो कई बार तो वी नो कि ऐसा चेंजेस हो गए हैं. मैंने इसको 10 चीजें सिखाई, 2 चीज ये खुद ही सीख गया, बट sometimes we might also not know कि वो क्या एक्स्ट्रा सीख लिया जो कि mankind के लिए is not very safe kind of thing. So what is artificial intelligence? Artificial intelligence is means it is made up of 2 words. Intelligence, artificially if we put in non living things, सब living things के अंदर इंटेलिजेंस होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, और उससे we make our decisions. So if those decisions we put in non living things, those intelligence can be developed in non living things, then that is called only the artificial intelligence. Where in which sectors we have seen, as I have said, that artificial intelligence is present in all the sectors everywhere. So like for good, कई सारे countries जो rich countries हैं वो लोग इसको use कर रहे हैं as finding out poor population. Satellite को use करके different scenarios को देके वो लोग फाइंड आउट करते हैं अफ्रीका में या कहाँ पे सबसे ज्यादा होमलेस पीपल है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स को यूज करके दे फाइंड आउट जहाँ पे वर्ल्ड जा नहीं सकता है, वो लोग कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. तो दोज प्लेसेस ऑल्सो कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन द एविएशन जो हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं कि कौन सा गेट, किस गेट पे किस फ्लाइट का आना है, वो भी क्योंकि उसका डिसीजन फिक्स नहीं कर सकते हैं. फ्लाइट्स के आने का टाइमिंग तो शेड्यूल्ड है, लेकिन कभी अगर 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए गेट एलोकेशन इज बीइंग डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली. प्राइस वेरिएशन देखेंगे कई बार कि प्राइस वैल्यू अभी बहुत घटा हुआ है, फिर अचानक से 2 दिन में बहुत बढ़ जाता है, या इफ यू कीप ऑन चेकिंग सेम रूट का प्राइस फॉर 2-3 डेज, तो 4th-5th डे पे वो आपको आपके लिए वो प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा. ऐसा भी एयरलाइंस का, डिफरेंट एयरलाइंस का होता है. तो दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेनली वो डेटा को एनालाइज करके वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि मेरा सीट भी सारा फुल हो जाए, और ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहे. सिमिलरली इन एजुकेशन सेक्टर कॉन्सेप्ट्स थ्रू रोबोट्स पढ़ाया जा सकता है. जैसे कोई फिक्स्ड चीजें बतानी है, ये डिबेट तो कई बार होता है कि will the robots or these artificial intelligence or smart classes will replace teachers. तो वो तो completely is a different thing, but there are a few things like जो fixed है कि मुझे ये चीजें explain करनी है, that can be done using these apps or these intelligence technique. Then individual student tracking records, ये भी कई सारी जगह पे जहाँ पे number of students बहुत ज्यादा है, तो वो लोग सिस्टम में इनपुट करते जाते हैं हर एक चीज को, बच्चे के मार्क्स को, उसके बिहेवियर को, हर चीज को, तो उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बन के इंडिविजुअल बच्चे का वो आ जाता है. हेल्थ केयर में वी हैव ऑलरेडी सीन कंपेनियन रोबोट के तौर पे दे आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, और डेटा माइनिंग, मेडिकल रिसर्च, ये सब जो ये हैं डिजीज है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उनको पहले से डेटा एनालाइज करके और फिर वो उसमें से वो फाइंड आउट कर देते हैं कि अभी क्या स्टेप्स लेना चाहिए. डिसीजन मेकिंग में दे आर हेल्पिंग विथ द डेटा माइनिंग एंड ऑल. इन हेवी इंडस्ट्रीज में जैसे बहुत हेवी चीजों को बहुत देर तक होल्ड करना है या एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करना है, फॉर दोज थिंग्स robots are being used.
to carry huge number of people और huge objects. तो वहां पे भी जैसे कार ये सब देखते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए ऊपर से एक बहुत बड़ा सा ऐसे हाथ टाइप का कुछ रहता है स्ट्रक्चर, जिसमें वो होल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट कर सकते हैं. इन फाइनेंस ऑल्सो दीज द मार्केट कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है शेयर में, या अभी गूगल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे कैन सेट योर पोर्टफोलियो कि अभी आपको ये मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या ये आपको बेच देना चाहिए. उसी तरीके से ट्रेडिंग में ये सब चीज में यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. Some of the future things और this self flying helicopter K-Max ये इंडिया में भी है. तो ये यूज होता है वहां वैसी जगहों पे जहाँ पे people cannot go, एक भी मेंबर नहीं जा सकता है फ्लाई करके. तो इसमें कुछ कितना गैलन्स ऑफ वाटर को ये उसमें स्टोर करके और कहीं पे भी जा सकता है. पहाड़ वाले जगह पे हो गया या गैस कोई ऐसा जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत इजी नहीं है, आसान नहीं है, तुरंत जाना है, तो फॉर दोज प्लेसेस ये ऑटोनॉमस कार्स बाय 2020 ऐसा आ रहा है कि ये सब भी रोड पे रहेंगे जिसमें ड्राइवरलेस कार्स है. तो ये जीपीएस को यूज करके, गूगल मैप्स को यूज करके दे विल बी मींस they will be on the roads. इंडिया के लिए तो वैसे ये थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कितना सेफ होगा, लेकिन बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में इसका ट्रायल इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. Then comes these things I have already said that वॉइस असिस्टेंस जितना भी गूगल पे होता है. yesterday ओनली ये सर का जो गाड़ी है उसका सर्विसिंग के लिए आई हैड टू बुक. तो टाटा का वो था, ऑनलाइन आप कर सकते हैं. तो जैसे होता है ना कि आप हिंदी में जानकारी के लिए एक दवा, इंग्लिश में जानकारी के लिए 2 दवाएं, तो वो अब चेंज हो गया है. कई सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो मतलब उसमें यू जस्ट हैव टू स्पीक हिंदी, तो वो खुद ही उसको फिर हिंदी में बोल दिया. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नया लेना है कि पुराना सर्विस करना है, तो वो वर्ड्स को कैच करके वो पुराना सर्विस करना है करके आई हैव सेड इन हिंदी. इंग्लिश में तो फिर भी फिक्स्ड वर्ड्स है, हिंदी में भी ऑल्सो इट हैज टेकन. और बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये this thing has broken down everything, all this barrier of लिखना है, पढ़ना है, कभी रास्ते में है, ब्लूटूथ लगाए हुए हैं लोग, तो उसमें नंबर कैसे प्रेस करेंगे, तो वो सब चीज से अब फ्री हो गए हैं. उसी तरीके से है इन चाइना न्यूज एंकर्स जो हैं वो लोग रिप्लेस हो रहे हैं अब धीरे धीरे, उनके जगह पे रोबोट्स को प्लेस किया जा रहा है. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इन एजुकेशन सेक्टर आल्सो दे आर सेइंग दैट 40% ऑफ द जॉब लॉस कैन हैपन इन नेक्स्ट 15 years. Grading system, everything can be done using artificial intelligence. How much more time is left for me? I think it's over, ma'am. Okay. ठीक है, then I'll close it because only 6 minutes is showing. For So we next. got a very fair view of AI. So I think it's enough. Now Rupesh sir can start. Okay, sir. Good evening, everyone. Myself, Rupesh Kumar, and I am going to share about some quality of a good teacher. Good and teachers. We all are know good and teacher teaching. When I speak, I am a teacher. I feel proud. Then I saying teaching is a profession that teaches all profession in the world. Teaching is a profession that teaches all the profession in the world. टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी प्रोफेशन को टीच करने का काम करता है मेंटर के रूप में. एज अ टीचिंग इज अ टीचर, एज अ टीचर
teacher is a role model in our society and as students, we all are known. Here we discuss some quality of a good teachers. First, we discuss the first quality, best in character. Here best in character, टीचर को एक कैरेक्टेबल पर्सन के रूप में होना चाहिए. रेस्पेक्टेबल पोस्ट टीचर जो होता है वो रेस्पेक्टेबल पोस्ट के लिए होता है. एज अ उसके सेइंग और डूइंग या वर्ब या एक्शन, ये दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. वो जो बोलता है और वो जो करता है वो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सेकेंड क्वालिटी जो है आपका पैशनेट. टीचर, if you are teachers, your profession and a passion, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जब तक आप प्रोफेशन और पैशन दोनों सेम नहीं होंगे तब तक आप किसी यू आर नॉट अ गुड टीचर्स. थर्ड क्वालिटी इज बेस्ट कम्युनिकेटर या बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल. आप एक टीचर के रूप में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप जब किसी स्टूडेंट को समझाते हैं एज अ क्लास में या आउट ऑफ प्लेस, तो आपका जो लेवल हो कम्युनिकेशन का स्किल का जो लेवल हो वो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हो. अगर 2 क्लास का स्टूडेंट हो तो 2 क्लास के लेवल के ही उसका थिंकिंग के लेवल, उसी के पहुंच लेवल के अकॉर्डिंग आप उससे बात करो, उसको समझाओ. वे बच्चों के लेवल पर ही जाकर उसको पढ़ाना जानते हो जो टीचर हो, या वो जिस क्लास में जाए वहां सिंपल से सिंपल और इजी वर्ड इस्तेमाल करे, जिससे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो इंक्रीज करे, वो अच्छी तरह से समझ सके. नेक्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट. जिस सब्जेक्ट का वे टीचर है उस पर कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, उस पर कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए. क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर को देखे हैं कि अगर क्लास में कोई बच्चा क्वेरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उनके पास नॉलेज की अभाव के कारण वो उसको डांट देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अप्रिसिएट करना चाहिए. कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उनको अप्रिसिएट करे, उनको इनकरेज करे. ठीक है, इस ये कहाँ से आएगा? तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट का फुल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. और एज भीमराव अम्बेडकर ने बोले ही थे कि नॉलेज इज अ मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम इट स्टार्ट रोअरिंग. नॉलेज वह शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ना शुरू कर देता है. आजकल ये बहुत सा ट्रेंड चला हुआ है. तो नॉलेज रहेगा, नॉलेज इज ए पावर ऑफ मैन, एक आदमी की शक्ति के रूप में वर्क करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो सोशल जीनियस होना चाहिए, ग्रीगेरियस पर्सन होना चाहिए. उसे सामाजिकता को समझ में आना चाहिए, उसे बच्चे को अपना बनाना आना चाहिए, उसे बच्चे को प्यार करना और प्यार देना दोनों आना चाहिए. अगर ये क्वालिटी आप में है तो यू आर ए गुड टीचर. नेक्स्ट जो क्वालिटी टीचर में होना चाहिए वो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए. उसको बच्चे का माइंड रीड करने आना चाहिए. जब तक आप किसी बच्चे का माइंड रीड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑब्जर्वेशन पावर बेटर नहीं हो सकता है. आप एक अच्छे टीचर के रूप में उसको समझ नहीं सकते हैं, उसमें जो कमियां है, वीकनेस है या जो क्वालिटी है उसको आप समझेंगे नहीं तो उसको दूर करने की कैसे कोशिश करेंगे. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को समझने के लिए उसका माइंड को रीड करना, उसका बिहेवियर को वॉच करना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वालिटी जो होना चाहिए, बच्चे को एक टीचर को अपने जॉब के प्रति इनर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. जो भी वर्क कर रहे हैं उनमें एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. जब तक आपको किसी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आप उसमें अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं. टीचर को लर्नर होना चाहिए. लर्निंग एक क्या है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लर्निंग जो होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए. बच्चे को भी सिखाना चाहिए और खुद को भी सीखना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए. तो टीचर का ये जो क्वालिटी है एक टीचर को एक गुड टीचर बनाता है, टू मेक अ गुड टीचर्स. तो ये क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए सर. ठीक है, थैंक्स ऑल यू. Okay, sir. Thanks. I think it was a very crisp and clear discussion. All 3 speakers were wonderful. और हम लोगों ने 3 अलग-अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने गैदर किए. ऐसे ही वीकली मिलते रहे, थोड़ा बहुत अपने अपने नॉलेज को शेयर करते रहे. आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्पीक, शेयर, ग्रो.
राइट एक और कोई पार्टिसिपेंट है बाय द नेम अनुप्रिया, आई डोंट नो, ये न्यू नेम, आई ट्राइड ऑफ एनीवन हु I know, नोज sir. अनुप्रिया रंजीत I know, sir. अच्छा ठीक है आपके रेफरेंस से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, Yes, आई थिंक थैंक यू वेरी मच, वी विल अगेन मीट ऑन 30th of January at 4 p.m. Bye bye, good day, happy Sunday।